Do you have systems in place to see कि इस बंदे ने किस किस चीज़ों पे अप्लाई किया हुआ पहले? हाँ, यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती हूँ। हाँ sure. अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the 9th episode. आज की एपिसोड में we have Ayesha Mahmood with us. We have known each other from about 6 years. We've worked at Arbisoft together. I have known her to be very high energy, a workaholic, a master multitasker, and she is also a full-time mom of 2 very cute children. तो अस्सलाम वालेकुम आयशा. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है? Fit. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. Acha, so you're the first person from the HR side who is on the show. So, that's nice. So the purpose of this interview is to get some insight into how the HR works in a tech company, and then what are the things that students and fresh graduates can learn ताकि उनके लिए ज़्यादा easy हो जाए to get hired into tech companies. ठीक है, so let's just start with your journey first. How did you end up in HR in a tech company? अच्छा, so obviously wasn't too planned. इस तरह से था कि I left TestCon because I was getting married. तो break ली और then I had a child. तो तकरीबन पूरा 1 साल का gap आ गया हुआ था. तो I had honestly no plans of returning this soon because my son was 4 months old. अच्छा. तो कोई इतना serious नहीं थी मैं कि actively नौकरी ढूंढनी and stuff. So my husband mentioned about a job. I had no clue about IT industry or tech industry. So he mentioned that there is this job जो कि जिसमें लिखा हुआ है कि flexible timing है. He was working in Lumps at that time. He got to know from another person. So the only thing that attracted me at that time was to explore ये flexi timing का क्या scene है. तो again I was reluctant और मैं जिस तरह की मेरी थोड़ी आदत है I wasn't too sure कि this is the right time because my son was too young. तो honestly my husband pushed me कि just interview तो दो. वो अब तक ही कह रहे थे interview तो दो, तुम तो LinkedIn वाली messages को भी decline कर देती हो there and then. So that was him pushing me. So that's how it started off. Had a really nice conversation with Yasser और that's how we ended up. That's how I ended up with Arbisoft. So And this happened in 2014, right? Yeah. So it's been 7 years. 7 years. And you've been working with Arbisoft throughout. Yeah. ठीक है, सही है. All right. So how was HR in tech different from HR in, let's say, Descon or Shaukat Khan? You worked in Shaukat Khan as well? Yeah. Shaukat Khan में mainly I was in the marketing department, OPD section with chemo bay में जो बच्चे होते हैं उनके साथ मेरा time था, तो it was a very small tenure. Descon में yes I spent 1 year with the IT team. SAP की implementation के अंदर I was part of that team. I was also taking care of the change management there. तो 3 साल का अगर Descon का टाइम था तो 1 साल मैंने SAP की implementation में रही हूँ. उस पर थोड़ी सी development भी की थी मैंने. That was also a nice journey. And then 2 साल very exclusively recruitment और OD के अंदर काम किया था. And then I came here. So you're talking about the differences, right? तो बड़ा obvious जो difference है वो ये कि I don't know, हर एक का अपना अपना स्टाइल है. I feel like एक टेक्निकल इंडस्ट्री में या एक IT इंडस्ट्री के अंदर इट्स डिफरेंट. और वो ये था कि इन माई प्रीवियस कंपनी जो आपका HR का डिपार्टमेंट होता था वो उसके ऊपर बहुत बड़ा अंदर बाहर लिखा होना कि ओनली स्टाफ या ओनली HR स्टाफ अलाउड या वेरी सिक्लूडेड कॉन्फिडेंशियल एरिया और बिल्कुल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पीपल. तो That's how it was, right? कोई अगर दूसरा बंदा चलता फिरता आ रहा है तो आप you're being looked at, आपको देख स्टेयर कर रहे हैं कि एक दूसरा एम्प्लॉई क्यों यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है. तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं यहाँ पे सिर्फ. What are they doing in this floor? सही है. तो it's like it's so opposite here, right? मतलब यहाँ पे day 1 से ही it's like an open door policy, not just in HR. वो तो कंपनी वाइड भी वो चीज़ है. तो वो एक जो फीलिंग आती थी कि you cannot connect with the HR people, you cannot connect with the deep people there, तो वो वाली चीज़ ख़त्म है यहाँ पे. तो at least as far as Arbisoft is concerned. तो एक ये चीज़ बहुत कॉमन है. फिर जो दूसरा जो बहुत मेजर है, I might just pinpoint the prominent ones, and I'm sure there are a lot of them. दूसरा है जो एक typical, which is why we changed our department to people operations and development.
वो ये कि जो टिपिकल HR का स्ट्रक्चर होता है वो अगर कहीं पे आप जा रहे हैं या इम्प्लीमेंट कोई करना है प्रोसेस, तो इट्स प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट एंड देन लोगों को उस प्रोसेस के साथ मैप होना होता है. ठीक है. You're just enforcing a process, you're just enforcing a policy. Whereas here I feel like, I don't know how well we've done it. I'm sure abhi we're not completely there yet, but it's more people centric. अच्छा. You want to make sure कि it's लोगों की नीड के हिसाब से पॉलिसी या गाइडलाइन बन रही हो, बजाय कि हम पहले गाइडलाइन बना रहे हैं और वो you're forcing them to be implemented. It's the other way around in the IT industry. ठीक है. उसकी वजह क्या है कि we know that the people here are important and then इतना easy replace करना नहीं है. They're high on demand. We need to meet their expectations. आपके engineers होते तो लाडले हैं, we know that, right? तो उनके हिसाब से हम अपनी टिपिकल HR माइंडसेट नहीं अप्लाई कर सकते. लीव्स इतनी होंगी, टाइम पंक्चुअलिटी इस तरह होना चाहिए, 9 to 5 का कल्चर होना है, इस तरह से आपने टाइम स्टैम्प करना है. वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड थिंग्स वी रेड इन HR की बुक्स के अंदर कि आपने पॉलिसी इस तरह इम्प्लीमेंट करनी होती है, HR का काम ये है. वो सारी किताबी बातें आर गॉन. अच्छा. इन एटलीस्ट IT इंडस्ट्री, बिकॉज आपके जो लोग हैं वो आपके प्रेशियस हैं और उन प्रेशियस लोगों को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है और उनकी मर्ज़ी और उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. सही है. बिकॉज वी नो कि उसमें से अगर एवरेज से एवरेज भी होगा उसको भी 5 लाख की 4 लाख की नौकरी निकल जाएगी, वो खुश नहीं होगा, वो निकल जाएगा. तो दैट्स वेयर इट स्ट्रक मी टू. आई मीन ऑब्वियसली आई वाज़न्ट all prepared to handle a company like that from the beginning. बहुत कुछ सीखा है शुरू से लेके अब तक सीख रही हूँ, लेकिन that's what has driven me throughout in everything that we've tried to do in the people operations department, making sure people come first, then your policies, then your everything else, then your बाकी सारी HR की. सही है. and you say कि tech companies में it is the main reason for this is कि the talent is highly valued and scarce. Yeah, and the DNA is different ना, ये personality और है engineers की. You compare them with other engineering के अंदर ही आपका, मैंने तो mechanical civil engineers, mechatronic engineers वगैरह के साथ भी काम किया, वो different personality है. क्या main differences क्या होते हैं? You don't like talking to people. You people CS engineers को ज़्यादा बात इतना social interaction का शौक नहीं है. They like to be confined in their zone. They'd like not to be disturbed when they're focusing on something. They have their altogether different interests. They have their जो चीज़ अगर उनका फ्री टाइम है या आउटसाइड देयर प्रोग्रामिंग टास्क, वो भी बहुत ही सिमिलर थीटा टाइप के काम ही होंगे जो वो करना चाहेंगे. वो कोई ऐसा नहीं होगा कि उनका जो हॉबीज़ भी होंगी वो भी डिफरेंट ही होंगी. सही है. सो ऑब्वियसली नो कंपैरिजन टू अदर इंजीनियर्स और अदर सब्जेक्ट मैटर्स के लोग. तो या सही है. Very interesting insight. अच्छा, Ayesha, you have worked in HR and tech for about 7 years now. ठीक है. You have 4 to 5 people in your team as well, right? 6, I guess. Yeah. So when you joined, Arbisoft was around, I think 85 people. I think 90, 85, 90. And now it is at roughly 550. 500 plus, yes. तो इन 7 सालों में, what are the headline things that you observed that जो अगर लोगों को पहले से पता हो तो शायद it would maximize their chances of getting a job in a tech company या फिर building a career in a tech company. So I think काफ़ी broad सवाल है, but if you would want to start from के अच्छा ये traits होते हैं लोगों के जो successful होते हैं, ये traits होते हैं उन लोगों के जो who are more likely to succeed in an interview, ये traits होते हैं उन लोगों के who just don't work in tech for us. हाँ, I think वाकई, I mean I can go on this. इतने सालों में इतने CVs देखे, इतने लोगों से मिले, इतने लोगों को जाता देखा, इतने लोगों को आता देखा है, तो and I guess बहुत ज़्यादा point of views मेरे बदले भी हैं with time, तो I can maybe point out as much I can think of. एक तो ये बहुत obvious से start करूँगी, जो कि it feels like it's obvious but apparently it's not. Is when they're applying, I mean in a time like now, जब आपकी इतनी अच्छी applications grammarly type की भी आ गई हैं, where you can easily check your typos, where you can easily see कि आपकी phrasing कैसे बेहतर हो सकती है. At least make your CV nicely formatted. If you're sending a cover letter, उसकी spell check तो कर लो, उसमें बहुत obvious mistakes तो identify कर लें. Formatting तो CV की ठीक कर लें. I think ये बहुत बड़ा turn off होता है. It's a huge turn off, right? I mean, मैं पिछले दिनों अपनी टीम में से किसी से बात कर रही थी कि
अब इतने साल, मतलब मुझे टोटल तो 11 साल हो गए एचआर के अंदर, अब एक सीवी को देखते ही पता लग जाता है कि ये एंड स्टेज तक तो ये जाएगा। सीरियसली है या सीरियसली क्यूरेटेड है या नहीं। हाँ. तो एंड इट्स द अदर वे अराउंड, देयर आई कैन नॉट थिंक, देयर आर वेरी फ्यू सीवीज जो कि हमने जिसको अल्टीमेटली हायर किया और उसकी सीवी बड़ी ही फारिग किस्म की है, बिल्कुल ही ऑफ फॉर्मेटेड होगी, यू रियली फाइंड इट दैट वे। तो एक तो अब हंट के लिए निकले ही हैं तो अच्छा टाइम लगा के अपनी सीवी को तो नाइसली फॉर्मेट कर लें, एंड देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स आउट देयर। कम से कम फॉन्ट ही कंसिस्टेंट कर लें, एक फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, बड़ा जा रहा है, एक की अलाइनमेंट ही ऑफ जा रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट्स गोइंग टू नॉट लीड टू अ जॉब, दैट्स अ टर्न ऑफ। हाँ बिल्कुल, और फर्स्ट इंप्रेशन में तो इट जस्ट बिकॉज that's the first impression about you कि अभी हम आपसे मिले भी नहीं, but that's telling about a lot about you, and it is definitely a testament to कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया अपनी सीवी क्यूरेट करने में। अगर आप उस पे अटेंशन टू डिटेल नहीं करते तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। yes absolutely। and अच्छा दूसरी चीज़, I don't know why people don't understand, at least I can say it for Arbisoft, right? मुझे नहीं पता बाकी कंपनीज में उसका कितना फ़ायदा होता है, but as far as Arbisoft is concerned, what people normally do is, अगर वो देख रहे हैं कि जेडी के ऊपर लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर 3 years of experience, that means anything under 3 years will not be considered, right? If a job requires कि हमें 1 year से नीचे नहीं चाहिए, तो फिर why apply for that position when you know that you'll be filtered out? तो and I've also noticed कि लोग एक ही CV मल्टीपल पोजीशंस के लिए विद इन द कंपनी भेज देंगे, वो भी अगेन ये सारी बातें आपके बारे में बहुत बता रही हैं कि वन you're just being too desperate, और इट इज़ पॉसिबल कि आपने जहाँ 5 जगहों पे अप्लाई किया उसमें से एक आपकी रेलिवेंट हो कि जस्ट गो फॉर दैट, राइट? डू यू हैव सिस्टम्स इन प्लेस टू सी कि इस बंदे ने किस किस चीज़ों पे अप्लाई किया हुआ पहले? हाँ, यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकती हूँ। हाँ श्योर हाँ, आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी एमेच्योर प्रोडक्ट ओनर ऑफ आवर वेरी ओन ATS विच इज़ हायर स्ट्रीम। उसी पे हम लोग अपनी सारी हायरिंग मैनेज कर रहे होते हैं, और उसमें अगर किसी ने एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स के ऊपर अप्लाई किया तो हमें नज़र आ जाता है कि इसने मल्टीपल एप्लीकेंट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। वी आर ऑल्सो एबल टू सी कि अगर उसकी प्रोफाइल मैच कितनी कर रही है। सही है, तो उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ लेट्स से स्पैमिंग योर इनबॉक्स एंड अप्लाइंग टू 10 प्लेसेस, तो वो दैट गिव्स अ बैड सिग्नल। हाँ, इवन इफ दे अप्लाई, हम लोग 6 months का ड्यूरेशन रखा हुआ है कि अगर आप एक पोजीशन के अगेंस्ट डिक्लाइन हो गए हो तो you can reapply after 6 months. ठीक है। Because the chances of you making any improvement in your profile वो इससे पहले unlikely है, right? सही है। तो बजाय कि वो हर महीने फिर अप्लाई किए जाए तो वो उससे बेहतर हमने फिर एप्लीकेशन उसको जाने नहीं देती अंदर कि we send a message कि you applied in the last 6 months, so you cannot would you know कि अगर बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी ऐसे ही सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं कि अगर एक बंदा स्पैम कर रहा है 5-6 जगहों पे अप्लाई कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि अगर if they have a nice applicant tracking system in place, अगर तो उनके पास एक अच्छों में आप कह लें लिवर, ग्रीन हाउस, जॉब स्कोर, वर्केबल, ये सारे आ जाते हैं आजकल के जो मॉडर्न एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं। इफ़ दे हैव इट तो आई एम श्योर ये बहुत बेसिक फीचर है, हम लोगों ने खुद बिल्ड किया तो हम वी काइंड ऑफ लुक्ड अप टू दीज ATSs। ठीक है, कि इफ आई मीन दीज आर सम ऑफ द मस्ट हैव्स। सो अगर कोई स्पैम कर रहा है तो देयर चांसेस विल डिक्रीज। We'll know. I mean, it won't decrease, but it won't decrease at all. But what would have been better is कि वो they just picked up out of the 10-12 open positions, they should pick up the one that fits most with their profile and just apply there. I mean, there are no way the chances would increase if they apply in one position, and there is no way it's going to increase if they apply for 6 positions. ठीक है, वो हम क्या कर रहे होंगे, बाकी सारों पे उसको डिक्लाइन मार्क कर रहे होंगे और एक जहाँ पे कंसिडर हो रहा होगा उस पे शॉर्टलिस्ट कर देंगे। इट्स जस्ट अननेसेसरी वर्क ऑन आवर एंड, और वो एक अजीब सा इंप्रेशन आता है। एट द सेम टाइम अगर एक बंदे को जिसको पता है अपना कि मेरा स्किल क्या है, किसमें मैं अच्छा हूँ, उस पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई करें, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, राइट? ये आ जाती है चीज़, अप्लाइंग ऑन मल्टीपल पोजीशंस डजंट हेल्प। फिर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कंपनी डज। अगेन ये सारे मल्टीपल चीज़ें हैं, जस्ट मेक्स अप द होल प्रोफाइल। ठीक है, बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ, इंटरव्यू किया, अच्छा आप, मैं ये नहीं करी आप रट्टा लगाएं कि हम क्या करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो होमवर्क करके आओ ना। उसके ऊपर कोई अक्सर ने नहीं किया होता, अच्छा नहीं मैंने बस वेबसाइट देखी थी, आर्बिसॉफ्ट क्या करता है नहीं पता ज़्यादा,
ये एक टर्न ऑफ अगेन हो जाता है कि आप इट शोज योर सीरियसनेस. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप 4 कंपनियों में और अप्लाई ना करें, लेकिन जिस जगह इंटरव्यू दिखा रहे हो उसको तो दिखाओ ना कि आई एम सिंसियरली योर्स. हाँ, I think it doesn't even take 2 to 3 minutes to just go to the website and just see कि वो किस niche में काम करते हैं. It may take somebody like of a non-tech person to understand. उसको शायद मुश्किल हो समझने में, लेकिन एक सीएस को तो समझ आनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है, किस किस चीज़ में काम करते हैं, किन वर्टिकल्स में काम करते हैं, ये तो पता होना चाहिए. फिर क्विकली अगर हम इंटरव्यूज पे चले जाएं, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंटरव्यू से पहले वाले पार्ट की बात करें. सो व्हेन समबडी अप्लाइज टू Arbisoft, डू दे गेट अ कॉल फर्स्ट? हमारे केस में यह है, वो कॉल होती है, डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट. हमारे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है. फॉर फ्रेश द प्रोसेस इज डिफरेंट. फ्रेश ग्रेजुएट की हायरिंग का प्रोसेस डिफरेंट है. कुछ पोजीशंस हैं उसका प्रोसेस डिफरेंट है. कुछ में हम केस स्टडीज़ दे रहे हैं, कुछ में हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं, टेक होम असाइनमेंट्स हैं, कुछ में टेक्निकल असेसमेंट सेंटर रन हो रहा है, कुछ में ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स पोजीशन क्या है. लेट्स टॉक अबाउट अ टिपिकल हायरिंग प्रोसेस फर्स्ट, कि जो एक तो हमारा फ्रेश ग्रेजुएट वाला डिफरेंट है ना, राइट. लेट्स टॉक अबाउट टिपिकल प्रोसेस फर्स्ट एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट प्रोसेस. तो टिपिकल में नाउ दैट वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे लेट्स से एप्लीकेंट ने अप्लाई कर दिए एंड Arbisoft इज इंटरेस्टेड इन दैट कैंडिडेट, तो उसके बाद क्या चीज़ है? अच्छा, टिपिकल में एक स्टेप पीछे भी है कि उसमें हमने अब ये शुरू कर दिया कि अगर प्रोफाइल आई है तो इफ द एचआर पर्सन इजंट टू श्योर बेस्ड ऑन द प्रोफाइल कि ये वर्थ इंटरव्यूइंग है कि नहीं, तो हमने कुछ हमारा पैनल बना हुआ है इंटरव्यूअर्स का या रिव्यूअर्स का, कि हम उनको मल्टीपल प्रोफाइल्स भेज देते हैं, वो एक सीवी को रिव्यू किया और वो फिर अपना रिव्यू दे देते हैं कि ये वर्थ इंटरव्यूइंग है कि नहीं. तो वो भी एक स्टेप हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है लेटली. फिर इंटरव्यू की बात आती है, हमने ये भी एक रिसेंटली काम शुरू किया है कि इंटरव्यू सीधा करवाने की बजाय हम एक असाइनमेंट भेज देते हैं. अच्छा. वो असाइनमेंट टेक होम हो सकती है, कैन टेक 5 to 7 days. वो आई मीन उस असाइनमेंट का अच्छा होना या उस पर एक अच्छी मेहनत हुई हुई हो, वो 80% कह लो लाइकलीहुड होता है कि वो इंटरव्यू में भी सक्सीड करेगा और एक ऑटोमेटिकली वो एक मतलब प्रोमिनेंट हो जाती है प्रोफाइल के लिए. ठीक है, कि अगर असाइनमेंट अच्छी हुई हुई है तो अनलेस वो कोई बहुत ही बेवकूफ़ी या ब्लंडर मारे इंटरव्यू के अंदर, तो द लाइकलीहुड ऑफ देम डूइंग वेल इन इंटरव्यू इज अ लॉट एज कम्पेयर टू कमिंग डायरेक्ट फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है एंड आई एम श्योर फ्रॉम अ कैंडिडेट स्टैंड पॉइंट वो उसको लगे कि ये क्या हैसल है, 5 दिन मुझे ये काम करना है. इवन एक्सपीरियंस लोगों को भी एतराज़ होता है कि मैंने अपनी नौकरी करनी है, तो हम अक्सर टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं. लेकिन जहाँ उसके प्रोज हैं कि इट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ समबडी गेटिंग हायर्ड, उसके कौन ये है कि जिसको जल्दी है नौकरी ढूंढने की. पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह प्रॉब्लम है कि एक कंपनी है जो आपको 10 दिन की असाइनमेंट दे रही है और एक कंपनी है जो आपको कह रही है अभी इंटरव्यू दो, मैं हायर कर लेता हूँ. तो पाकिस्तान का माइंडसेट अभी यही वाला है. ठीक है, कि दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे विल गेट इन रिटर्न. वो कंपनी का शायद इतना होमवर्क नहीं करते हैं, वो अभी इमीडिएट जो मुझे फ्रूट मिल रहा है, they're just going ahead with that, they're going with that interview, they're getting that offer, और वो 15 दिन पहले जो एक चीज़ हमारे साथ होनी थी वो they'll go with that. And तभी I feel like going deeper into the company is important. चाहे they can spend a day with us, they can understand कि culture क्या है. If somebody wants to, so they can just reach out to you and say I want to spend a day. I want to understand the company, I'm looking forward to apply. तो आ जाओ, मिल लो हमसे, गपशप लगा लो. Good, open offer for everyone. Yeah, absolutely. अच्छा. तो ये एक चीज़ मुझे फील होती है कि if they had gone for that exercise, तो शायद a company that might have a toxic culture, but because they were quicker process, you went for that, but you lost it. ठीक है, सही है. हाँ. हो सकता है अच्छी कंपनी नहीं हो, लेकिन ये कौन है कि कई दफ़ा जो जिसको जल्दी होती है नौकरी ढूंढने की और उसके पास टाइम नहीं है और वो नहीं उस हैसल से गुजरना चाहता, जबकि बाहर सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में असाइनमेंट का वगैरह का सिलसिला इज़ प्रीटी कॉमन. लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा चैलेंज है ये वाला एस्पेक्ट. लेकिन वी हैव हैड ग्रेट सक्सेस, एटलीस्ट आई एम श्योर ऑफ, कि जितने भी असाइनमेंट के थ्रू लोग आए हैं हमारे पास, द वंस हु डिड वेल ऑन द असाइनमेंट, दे डिड रियली वेल ऑन द इंटरव्यू एंड दे डूइंग रियली वेल ऑन द जॉब. वो द लाइकलीहुड ऑफ देम डूइंग वेल ऑन द जॉब इज जस्ट अ लॉट मोर. अच्छा, तो अगर आप में से किसी को असाइनमेंट मिले तो टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज वो आपके ऑड्स काफ़ी इंक्रीज कर सकती है. हाँ, और आई थिंक हमारा जो फ्रेश हायरिंग प्रोसेस भी है, दैट इज़ ऑल्सो मैस असाइनमेंट ऑफ सॉर्ट्स. मतलब पहले एक दफ़ा आपका एक पब्लिक टेस्ट होता है, उसके बाद यूर कॉल्ड इन हाउस टू गिव अ टेस्ट. तो वुड यू शेड सम लाइट ऑन द प्रोसेस? दिस प्रोसेस हैज refined and evolved with time, but I'm so glad that where we are right now with the process, I feel really proud of being part of that process. तो सिंपल है, हम लोग बैच हायरिंग करते हैं एवरी ईयर.
और उसमें कोई नंबर की लिमिट नहीं है. अगर हमें 100 बंदा पसंद आएगा हम 100 को हायर करेंगे, 200 पसंद आएगा हम 200 करेंगे. It still feels unfortunate that at a point where we don't have a limit, like we don't end up hiring that much. I remember last year we hired about 30 people at the end. 30-35 out of I think थोड़ा सा 35 or 39 है. Sabine would know the exact number. She takes care of the whole fresh hiring वाला process. लेकिन अगेन मुझे अफसोस ये होता है कि जहाँ हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है, where we saying कि हम 100 भी बंदा हायर करने को तैयार हैं अगर अच्छे होंगे, बट वो क्वालिटी मिलती नहीं है. तो वो दैट्स अनफॉर्चुनेट. वो एक खैर अलग ही टॉपिक है. तो ऑनलाइन टेस्ट होता है एक ही टाइम पे और फिक्स टाइम का होता है पूरे पाकिस्तान में. इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी CGPA, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी यूनिवर्सिटी, इट्स फॉर एवरीवेयर अराउंड द कंट्री. और वो एक ही टाइम पे करते हैं. उनका रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है, बल्कि I hope you post the video when the registrations are happening. 29th January तक registrations open है हमारा अगला 2021 की fresh hiring का. 31st January को हमारा ऑनलाइन टेस्ट है. तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, इट्स रैंडमाइज MCQ बेस्ड टेस्ट, नो क्वेश्चन रिपीट्स इटसेल्फ. तो वो हर कोई बेशक इकट्ठे बैठ के भी करेंगे तो उनको सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तो चीटिंग के चांसेस नहीं होते हैं. अगर वो इतना नाइसली मेड टेस्ट है कि बहुत जो फिल्टर है वो जो उसमें से निकलता है वो एक अच्छी ही क्वालिटी का बच्चे आ रहे होते हैं उसमें से. ठीक है. फिर स्टेप 2 है आपका कोडिंग वाला जॉब सैंपल टेस्ट. आई एम नॉट श्योर हम कोविड में अब ऑफिस बेस्ड तो नहीं कर रहे होंगे, वो ऑनलाइन ही चल रहा होगा विद वीडियोस ऑन. लेकिन द पर्पस ऑफ जॉब सैंपल वाज के वही वाली बात के लोग आए हमारे ऑफिस में आए, क्योंकि फ्रेश है ना, उसको तो नहीं पता. एक्सपीरियंस लोगों को तो पता होता है कि ये कंपनी ऐसी, ये कंपनी ऐसी है. बच्चों को तो नहीं पता. वो तो एक यूनिवर्सिटी से बिल्कुल ही प्योर फ्रेश माइंड के साथ आए हुए हैं. दे डोंट नो मच अबाउट अदर कंपनीज. तो जॉब सैंपल का पर्पस ये था कि दे गेट टू नो द कंपनी, दे स्पेंड द होल डे, दे सिट विद अस, दे ईट विद अस, हमारे साथ खाएं और देखें कंपनी का कल्चर कैसा है. तो दे देन स्पेंड द होल डे. उनको 5-4 कोडिंग असाइनमेंट्स मिलती हैं एंड दे हैव द होल डे to do it. No time limit. No time. नहीं, हमारे 11 बजे तक की लिमिट रखी थी फिर हमने रात के. तो बहुत ज़्यादा हो गया था ना सुबह से आए हुए, तो वो रखी थी. फिर and then I think उसके बाद फिर finalize scoring होती है. फिर उसकी बहुत बड़ी टीम है जो उसमें contribute करती है. You're one of the contributors for this whole process. उसमें लोग उसकी सारी कोडिंग असाइनमेंट को चेक करते हैं. वो कोड की क्वालिटी चेक हो रही होती है. बड़ा उन्होंने क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें they are being assessed, and then we do go for, recently we have started going for 15-20 minute final interview too. पहले ही होता था कि बस जॉब सैंपल में अगर हो गया तो बस HR इंटरव्यू करके we'll take them on board. But now we've introduced technical सैम. वो मेरे ख्याल से केस टू केस भी वेरी कर रहा था. अगर it's an absolute yes तो फिर we may not go for a technical interview too. और फिर पीपल ऑपरेशंस का इंटरव्यू होता है. उसमें भी सी के लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं, क्योंकि कई दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको देर वेरी क्लियर कि मैंने 6 महीने बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है. तो बस फिर वो ऐसे केसेस पर हम हटा देते हैं. फिर वो हम लोगों के लिए फिर वो फ़ायदा नहीं है. हाँ, वो उनके लिए भी फ़ायदा नहीं है, वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम. हाँ, ठीक है, सही है. तो हाँ, दिस although it is a very comprehensive process, but top of the funnel लोग इतने ज़्यादा हैं कि there is an equal opportunity for everybody to make their cut. Would you want to shed some light on what universities you pick और university के specific जो rules होते हैं for the scoring and everything? नहीं, हम लोग पिक नहीं करते honestly. अब तो हम लोग initially placement offices को reach out करते हैं. अब तो placement offices को reach out करने के अलावा हम अपने open pages पे सबको कह रहे हैं. फेसबुक पे पेज पे हमने किया, लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है कि हम वेयर ओपन टू फ्रेश ग्रेजुएट्स. तो प्लेसमेंट ऑफिस जितने भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, वी रीच आउट टू देम. सो वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज इन माइंड. यूनिवर्सिटीज दैट हैव डन वेल, उसमें UET आ जाता है फास्ट, PUCIT वेरी करता है, कभी दे डू वेल इन अ ईयर, कभी कभार उनका बैच अच्छा आ जाता है. फास्ट यूजली कंसिस्टेंटली डज वेल, नस्ट कंसिस्टेंटली डज वेल, UET कंसिस्टेंटली डज वेल, नमल वी हैव हैड गुड एक्सपीरियंस विद. There was a time when we had really good experience with UOG, University of Gujarat. There was a time when we had good experience with University of Bahawalpur. और अब I don't know things have changed या नहीं, लेकिन हम अब भी extra effort करते हैं. Even though the experience with their placement offices is not smooth, जिस तरह फास्ट वगैरह का तो इस तरह डेटा मिल जाता है ना. यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, गुजरात, सरगोदा, इनको रीच आउट करना, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है. तो डेटा मिलना तो दूर की बात. तो वी
tried putting an extra effort अच्छा कि वहाँ से भी मिले, ताकि we want that diverse variety of people. We've had of the A players that we have in the company जो outshine करते हैं, उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हैं, बहुत सारे IUB के हैं, तो we want to cater to all kinds rather than being very specific हमने lumps fast वगैरह लेना है, तो that's not the case and not limited to CGPA 2, तो उसका भी कोई कट ऑफ नहीं है. ठीक है, सही है. तो right, so this is the whole process of Arbisoft hiring for experienced and fresh graduates. Yeah. In your last 7 years at Arbisoft, what are some of the traits that you found common among the A players at Arbisoft? Okay, nice. हाँ, मतलब so I think कि for somebody who is in their first year या second year of the university, वो कि अच्छा यार अगर 2-2.5 साल बाद भी मैंने अप्लाई करना तो मैं इन चीज़ों पे काम कर लूँ अपनी, अगर मैं लैक करता हूँ तो कोई कॉमन चीज़ें हैं which you found in engineers who outshine? Most common तो I guess वो होगी कि the ones who continuously learn, who don't think कि बस मैंने जितना आता है इससे आगे नहीं मैंने जाना, वो continuous learning जो करते रहते हैं, वो बहुत कॉमन है हमारे प्लेयर्स के अंदर. I think accepting mistakes, taking risks, being self-aware कि मेरी क्या खामियां हैं, किन चीज़ों को मुझे improve करना है, that also counts, and being flexible. बस मैं अब इतना सीनियर हो गया हूँ, मैंने लीड पोजीशन में आना है, वो चीज़ वो नहीं होनी चाहिए. फिर ये कि गोइंग फॉर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि अपने कंफर्ट जोन में रहना जो है वो भी कम ही देखा है कि आपके जो मुझे इफ़ आई थिंक ऑफ द ए प्लेयर्स इन माई हेड राइट नाउ, वो होंगे कि नया प्रोजेक्ट आया है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, टफ क्लाइंट है, आई वुड हैव 3-5 पीपल इन माई माइंड कि ये डालो, ही वुड जंप इन, ही वुड ओन इट अप and he will run the show and own the whole process and he will do a brilliant job. ठीक है. So उसमें कोई ना उस बंदे में ईगो है, ना उसके अंदर कोई डिस्कम्फर्ट है, ना उसको कोई टेंशन है कि what if I fail, ना इनसिक्योरिटी, वो बस he or she would dive in. So these are some of the traits of an A player के. और वो fear क्यों होगा भाई, जब कंपनी आपको full comfort दे रही है, they're backing you up, when you're saying कि you're in good hands, तो फिर आपको टेंशन फ्री होकर वो रिस्क लेना चाहिए. तो these are some of the traits. ठीक है. It's very interesting that you didn't mention intelligence या फिर वो भी of course, cognitive ability, मतलब नहीं of the top skills, मतलब you didn't mention them. I'm probably because मैं people operations से belong करती हूँ, तो शायद इसलिए मैं soft skills ज़्यादा बता रही हूँ. I think technical, किसी आप technical से बात करोगे तो वो यही कहेगा कि technically भी वो super strong होना चाहिए. ठीक है. And then अगर कोई lead position में है या कोई ऐसा nature of work है जिसमें आपकी communication strong होनी है, तो communication भी strong चाहिए, वो तो आपके skill के अंदर आ जाती है. मैं वो बात कर रही हूँ कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि you're technically very competent, but ये जो आपके इस तरह के ख्यालात है ना कि you're high on ego, आपके अंदर वो pride है कि मैंने बस lead position पे काम करना है, या आपके अंदर वो एक you're in your comfort zone कि मैंने इस project पर बैठा हूँ, मैंने इस language में काम करना है, उसके अलावा नहीं करना है, नई चीज़ें सीखनी, मुझे ही आता है, बस किसी छोटे से भी सीखने के काबिल होना चाहिए आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप बस अपने लेवल के ऊपर ही रहें. So I'm mainly talking about from a personality standpoint. I guess technically sound होना तो वो तो I think that's like the bare minimum expectation from an A player if it's a technical person. ठीक है. अच्छा, so as long as we're talking about soft skills, Ayesha, how important is communication to shine in a tech career? I mean, I think it's जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेस करें वो कम ही है. I would also want to know कि communication की zoom in करें कि communication में क्या क्या आता है. Yeah. हाँ. I think if I put it in as less words as possible, it's as important as your programming skills. अच्छा. And I'm sure people listening would say कि क्योंकि ये HR की बंदी है इसलिए कह रही है, इसको क्या पता टेक्नोलॉजी क्या है. मैं real time जो हो रही है सिचुएशन उसको देखते हुए देख रही हूँ. A lot of people in our company too haven't been able to be in a lead position because they weren't good at communication. जब आपने लीड बनना है तो आपको क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट आपका गोरा है, आपको कम्युनिकेशन नहीं करनी आ रही, तो फिर कहाँ से आप उसको लेके चलोगे. ये तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात हो रही है. फिर आ जाती है कि अगर आपके अंदर किस तरीके से आप वो बात अपने बच्चों या जो आपकी टीम में लोग हैं उनसे आप कैसे बात कर रहे हैं.
how open are you in conveying your expectations, how open are you in giving coaching to them, how good are you with mentoring them. उसमें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, इसमें आपकी साफ सिर्फ नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है. So I can think of so many people who have struggled and have been staying in their software engineering or not been able to be promoted as a team lead because of lack of those communication skills. चाहे वो इंग्लिश में हो या उर्दू में हो. चाहे वो इंग्लिश में हो क्या उर्दू. बड़ी दफ़ा कुछ ऐसे लीड भी बन गए हुए हैं जिनके टीम मेंबर्स उनसे वेट ही करते रह जाते हैं कि हमें भी कोई फीडबैक दें, हमें भी सिखाएं, हमें बताएं. चाहे उनके दिमाग में इतना नॉलेज होगा बट वो शेयरिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है और वो हर एक के बस की बात नहीं होती. सो एंड आई ऑल्सो फील लाइक ये भी एक मसला है विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियर के डीएनए कि उनको ये लगता है कि मुझे बस प्रोग्रामिंग आती है तो काफी है. I give a damn about anything else, right? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी सारी चीज़ें क्या हैं. As long as I'm doing well in programming, मेरा कोड सही है तो बाकी चीज़ें are like by side पे चीज़ें. ठीक है, but from your perspective, seeing it from the third person's view, तो दो लोग जो equal scale के हैं, you would say कि the one with the communication would shine. Oh yes. अच्छा. And again, not talking about just English communication. It's about अगर आप इतने सीनियर हो गए हैं तो अब आपका it's a responsibility on you to share your wisdom and knowledge with other people. आपने नया चीज़ सीखी है उसको शेयर करें, उसको कन्वे करें. अगर आपके अंडर कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं आपको तो उनको भी सिखाएं, उनको फीडबैक दें फ्रीक्वेंटली, उनसे अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करें, उनसे काम की एक्सपेक्टेशन शेयर करें. अगर वो काम डिलीवर नहीं कर रहा तो वो कन्वे करें. You keep hearing these problems, right? बच्चों से बात करो, they're unhappy कि मुझे तो बताया ही नहीं. सही है. Why is the HR person telling them on the review कि ये आपको इसलिए मिल रही है अमाउंट या ये आपका फीडबैक ये मिला है. जो बंदा आपके साथ सारा साल या बंदी सारा साल काम कर रही थी उसको बताना चाहिए ना. इतनी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए इनके आपस में कि दे शुड बी एबल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. और ये इंग्लिश की बात नहीं हो रही है अभी, इसमें ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है. टेलिंग देम रेगुलरली कि अहमद ये बेहतर कर सकते हो, हाउ अबाउट यू डू दिस डिफरेंटली, हाउ अबाउट यू ट्राई दिस अप्रोच नाउ. सो आई फील लाइक इवन दिस इज नॉट देयर. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन तो दूर की बात. ठीक है, सही है. So it's important, like anything. All right, ठीक है. All very good points. अच्छा, Aisha, going to take a little tangent here. Yeah. What has your experience been with self-taught programmers or people who are coming from other disciplines? Electrical engineering से आ रहे हैं या computer engineering जो hardware की engineering होती है उससे आ रहे हैं, electronics से आ रहे हैं. हाँ, I think मेरे से ज़्यादा somebody technical can give more detailed comment on this, but as far as my understanding is, जितना हमारा जिन लोगों को हमने onboard किया है, we haven't had a good experience with people with different disciplines. They end up in QA, they would end up in a front-end HTML वाले role के अंदर, they may end up मतलब I cannot think of unless there are a couple of जो कि मुझे पता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हैं और देयर एन ए प्लेयर में काउंट होते हैं, लेकिन वो एक में से 1000 ही होगा. ठीक है. आई कैन नॉट थिंक ऑफ मेनी. और मतलब अगर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस होता ना तो शायद हम फिर डिसिप्लिन भी लिमिट ना करते. ठीक है. राइट. अभी भी जब हम फ्रेश हायर के लिए करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन CS है, IT है और कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं. इफ़ वी हैड गुड एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिस हिसाब से हमें लोग चाहिए तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी करते हैं. खासतौर पर उनका तो बहुत चंक है आउट देयर. वी हैवंट हैड अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस इवन दो दे अप्लाई. वो इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि जितनी मुझे समझ आई है जब फंडामेंटल्स ही थोड़े से वीक हैं तो फिर वो जितना मर्जी उन्होंने आगे फ्रेमवर्क्स को सीख लिया और प्रैक्टिस कर लिया, वो फंडामेंटल्स जब वीक होते हैं तो एक हद तक ही सक्सीड कर पाते हैं. सही है. और अब मैं सबसे आई थिंक द मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द चैनल, और आई थिंक पता नहीं लोग आपसे पूछते हैं या नहीं, लेकिन पहले ये कि डज यूनिवर्सिटी मैटर और दूसरा ये कि डज GPA मैटर. एक एक करके मतलब व्हाट डू यू थिंक, नॉट फ्रॉम Arbisoft standpoint, I think from a tech company's standpoint, what do you think? Does university matter? I definitely know companies जो के बगैर असेस किए या एक lenient way असेस किए टॉप 10s of certain universities को उठा के onboard कर लेते हैं. I'm sure it's successful for them, but I'm pretty certain it's not going to be successful in our case. And we don't want to be that kind of company जो कि universities पे limit लगाए. तो I do know companies that it does exist. हाँ, I know too. हाँ, सही है. और I think
ये चीज़ देखते हुए हमने कहा सोचा था कि हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज एनीबडी कमिंग फ्रॉम अ लेस के लो क्रीम यूनिवर्सिटी, वो हमारा लॉयल भी उतना ही होता है फिर उसको वो आई मीन एंड आई वुड मच रादर वैल्यू दैट लॉयल्टी ओवर यूनिवर्सिटी नेम, बिकॉज यूनिवर्सिटी नेम शायद आपको एंटर तो कर देगी, बट जो आप काम कर रहे हैं वो फिर आपका स्किल है, फिर यूनिवर्सिटी नेम योर CGPA डजंट इवन काउंट, ठीक है, एंड योर CGPA एंड योर यूनिवर्सिटी नेम इज जस्ट योर फर्स्ट एंट्रेंस, बिल्कुल, दैट्स इट। हाँ, और उसका आपने फर्स्ट जॉब कर लिया तो नेक्स्ट जॉब पे आपका रेफरेंस पॉइंट आपकी लास्ट जॉब, नॉट इवन जॉब अहमद, आई मीन योर फर्स्ट डे इन द ऑफिस, आई मीन गॉन, आपकी वो बात के नस्ट के हो या किस भी यूनिवर्सिटी के हो, वो स्किल क्या सीखा हुआ है वो मैटर करता है। हाँ. आप वो काम जो सिखा रहे हैं वो कैसे डिलीवर कर रहे हो वो मैटर करता है, वो फिर आपका CGPA नहीं मैटर करता। और ये हमें स्ट्रगल हुई है इवन सम ऑफ द फ्रेश हायर्स दैट वी हैड। आई कैन अंडरस्टैंड किड्स हु हैव हैड हाईएस्ट CGPAs और आर टॉपर्स इन देयर क्लास, वो प्रोमिनेंट होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और जब उनको वो प्रोमिनेंस और वो हाई वैल्यू कंपनी में नहीं मिल रही होती तो वो उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सच केसेस वेयर जो एक आपका नॉर्मल CGPA वाला है और आपका जो टॉपर है उसकी थोड़ी सी प्राइड एग्जिस्ट करती है, उसको ज़मीन पे आने में थोड़ा वक्त लगता है, और ऑब्वियसली आप फिर उस रियलिटी में आ जाते हैं कि इट्स नो लॉन्गर यूनिवर्सिटी नाउ। फिर आपका स्किल मैटर करता है, आप ये ना कहें कि मेरी अप्रोच ठीक है क्योंकि मैं टॉपर हूँ, मैं ये करूँगा क्योंकि मैं टॉपर हूँ, फिर आप टॉपर ख़त्म हो गई बात, हाँ. आप आ गए, just leave the topper thing behind. Because I really want to emphasize on this, मतलब kind of reiterating it कि the day you enter on your first, the day you have your first day at your job, उसके बाद से you're all equal. हाँ, university days are gone. हाँ, और वो anything that comes with your university, जो आपका बैगेज आ रहा है पीछे से, आपका जो ईगो आ रही है, तो that has to that just has to go out. हाँ, और उसमें जाहिर है ये कहना आसान है, कोई इतना करना मुश्किल नहीं है, मतलब इस कहना बहुत आसान है, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट। हम लोग जब बैच हायरिंग करते हैं तो वो नॉर्मल हायरिंग से चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज़ाहिर फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, ग्रुप जो चल रहा है यूनिवर्सिटी में वही ग्रुप यहाँ पे चल रहा है, तो वो जो हमने इतना रखा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सैलरी, और आपने सैलरी नहीं शेयर करनी, आपने बोनस शेयर करना, वो जो बैच अब तक 4 साल पहले हमने हायर किया था वो ग्रुप अभी भी है, वो ऐसे क्लोज नेट होते हैं, तो हमें बड़े टैक्टफुली एज एन HR पर्सन बताना पड़ता है जब कभी किसी को बोनस से एक डिफरेंट अमाउंट मिलनी है और उसको एक डिफरेंट मिलनी है, तो मुझे बहुत टैक्टफुली करनी पड़ती है वो मैसेजिंग कन्वे, या अगर इंक्रीमेंट की बात हो रही हो, क्योंकि वो इतने इकट्ठे चल रहे होते हैं तो वो आपको नॉर्मल एक्सपीरियंस हायरिंग में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। सही है, तो वो इट्स अ लिटिल हार्ड टू हैंडल बैच हायरिंग इन दैट सेंस टू, क्योंकि वो उनका कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। हालांकि कंपनी जब कह रही है कि हम कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्योंकि इकट्ठे आए होते हैं, वो मेरे से ज़्यादा क्यों सीख रहा है, वो देख हेल्दी होता है टाइम्स, आई मीन इट एंड्स अप देम पुटिंग मोर एफर्ट, हाँ इंक्रीमेंट के अलावा। लेकिन हम लोगों की जिस तरह प्रोसेस का हिस्सा है कि व्हेन फ्रेश ग्रेजुएट्स जब ऑनबोर्ड हो जाते हैं तो वी स्पेंड गुड 3-4 months ट्रेनिंग देम, और वो पूरा एक प्रोग्राम है, पूरा एक प्लान है कि स्क्रिप्ट से सिखा के जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन, जैंगो का पूरा एक प्लान बना हुआ है। तो उसमें अगर किसी की पेस ऊपर नीचे है तो कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है, लीड को भी एतराज़ नहीं है, मेंटर को भी एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बच्चा स्ट्रेस में आ ही जा रहा है कि मेरा वो जो दोस्त है ना वो उस प्लान पे आ गया है। भाई रिलैक्स, उल्टा हम उसको कह रहे हैं रिलैक्स, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, हर एक की अपनी पेस होती है। तो ये कंपटीशन आ जाता है फिर, तो वो हैंडल ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है कि इसको किस तरीके से लेके चल। कुछ जो है वो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में जल्दी लाइव हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं ज़्यादा, तो ये कुछ स्ट्रगल्स होते हैं इस चीज़ के, लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें, आई थिंक द होल आइडिया वेयर इट ऑल स्टार्टेड वाज कि हम एक क्योंकि पाइथन शॉप हैं and we were always hiring, we're still hiring for Python people, and in the first year we realized कि ये experience hiring जो है ये LinkedIn से तो नहीं मिलने वाली आसानी से, जिस हिसाब से हमें लोग चाहिए। तो fresh hiring का जो idea generate यहाँ से हुआ था कि let's build that capability ourselves। तो यहाँ से वो चीज़ अब तक चल रही है कि I think हमें जितनी need है वो इसके अलावा मैच नहीं हो सकती थी। There is fresh no hiring way, के थ्रू ही मैच हो सकती है। वो जो हमने 4 साल पहले हायर किए हुए थे वो अब लीड्स बने हुए हैं, वो जो हमने 5 साल पहले हायर किए हुए थे वो और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, वो उन बच्चों को हायर कर रहे हैं। वो साइकिल है कितना अच्छा चल पड़ा है कि अभी भी इफ़ यू आस्क
इनके मैं अपनी टीम में किसको लेना चाहती हूँ, तो आई प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट्स। सही है। क्योंकि उनमें एनर्जी और होती है, उनके आइडियाज़ ही और होते हैं, फेयरलेस होते हैं, फ्री दिमाग होता है। सही है। एक्सपीरियंस वाले का डिफरेंट सिनेरियो होता है। For everybody who's listening, Arbisoft hires around about 50 engineers, और वो उसमें भी कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं है, we'd love to hire more, yeah. हाँ, तो that is a very open opportunity for anybody who have probably और ये not ट्रेंड कॉमन होता जा रहा है, पता है। 3 साल पहले टीम्स के अंदर होता था कि मैं कहती थी ना फलाने को चाहिए अपनी टीम में 2 पाइथन की, तो मैं कहती थी एक्सपीरियंस तो नहीं है अवेलेबल, ये फ्रेश पड़े में, तो कहते थे नहीं एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस। अब ये चेंज हो रहा है ट्रेंड। अच्छा, अब उल्टा कहते हैं टीम्स भी कहती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स। हाँ, ठीक है। अभी हायरिंग नहीं हुई होती और टीम्स बुक कर देती कि जो फ्रेश लॉट आएगा ना उसमें से 3 मुझे चाहिए, क्योंकि अगर 2 मुझे चाहिए। आई डिड दैट फॉर माय टीम टू। मैंने कहा था मुझे 2 वर्क स्ट्रीम में चाहिए, मुझे 2 हायर स्ट्रीम में चाहिए, बुक किया। ओह डेफिनेटली। अच्छा। इन दोनों टीम्स में जितने भी एटलीस्ट 80% ऑफ द टीम मेंबर्स दैट आई हैव, वो अब 3-3 4-4 साल के एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं। बट वो थे उसी फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड दे आर ब्रिलियंट, लाइक अमेजिंग। सही है, जबरदस्त। अच्छा, सो आयशा, लेट्स से there's somebody who's a fresh graduate or a experienced professional and they've cleared their first and second interviews. अब HR इंटरव्यू की बारी है। पहला तो ये कि क्या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि what are the red flags that could potentially disqualify people in the HR interview? I know companies जो कि फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं HR इंटरव्यूज़ को। I mean they just go for standard questions, notice period कितना है, क्या expectations है, वो सैलरी से रिलेटेड बात हो रही होगी, and that's pretty much it. I also know companies जो कि they have a separate team जो कि cultural fitness को देखने के लिए एक अलग इंटरव्यू होता है. That's not even part of HR interview. So I wish we end up in that direction. अभी हम नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन I would want to be Arbisoft to be there where it is a group of cross-functional members, हर background के होते हैं और वो they themselves are ambassadors of Arbisoft's core values और वो अगले को assess करें from a cultural fitness standpoint. That's like the ideal journey in my head. अभी हम people operations interview कर रहा होता है HR का, एक candidate का. तो Arbisoft में formality नहीं है, but I know the trend exists. हमारे केस में red flags क्या होता है? अच्छा, I think जो candidates नहीं समझते वो ये कि we would actually want them to tell their failures and that's going to be in their advantage. We want them to be honest. We want them to tell them where things went wrong, बजाय कि वो उसको हाइड वगैरह करके एक हिडन तरीके से बता रहे, क्योंकि हमने रेफरेंस चेक करना ही करना है. ठीक है. और रेफरेंस चेक में सारी इनसाइडर मिल जाती है. हमने सैलरी स्लिप लेनी ही लेनी है या बैंक स्टेटमेंट लेनी है. तो आप अपनी सैलरी को जो भी बना के पेश कर दें उस इंटरव्यू के अंदर, वो उसका हमें रियल पिक्चर. Can it be a deal breaker? Absolutely, it is a deal breaker. अच्छा. Can वाली बात नहीं, it is a deal breaker. Lying on your HR interview can be a deal breaker. ठीक है. रेफरेंस चेक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. I mean we've used to do in the past too, लेकिन recently we've made it like a compulsory step कि चाहे उसमें प्रोसेस डिले आ रहे हो, रेफरेंस चेक हमने करना ही करना है. उसके अच्छे फीडबैक आएंगे, then we're going to go ahead with the offer. तो वो आ जाता है HR इंटरव्यू के अंदर. आई थिंक बड़ी दफ़ा लोग जो अपनी थोड़ी सी डिसऑनेस्टी वाली साइड दिखा रहे होते हैं वो और पता लग जाती है, वो ऑब्वियसली वो रह जाता है. अगेन और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वेरी कर रही होती है रोल के हिसाब से. कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें हमें कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने क्लाइंट डीलिंग करनी है, ठीक है. अब ऐसे केस में हमने JD में लिखा भी होता है कि वी आर लुकिंग फॉर समबडी विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. तो वो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो फिर वो डील ब्रेकर होती है, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पोजीशंस होती हैं, तो अ नंबर ऑफ टाइम्स आई एम काइंड ऑफ व्हेन आई एम टॉकिंग टू द पर्सन, बैक ऑफ द माइंड आई एम ट्राइंग टू फिट हिम विद अदर पोजीशंस. ठीक है. कि अच्छा यहाँ के लिए सही नहीं है तो उसके लिए ट्राई करती हूँ. और मेरी कम से कम जितने मैंने इंटरव्यूज लिए हैं मैं उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंटली बता देती हूँ कि लोग इधर तो सीन थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, ठीक है. Are you okay if we consider you for a flanny position? ठीक है. And that has worked as well. कई दफ़ा वो कहते हैं नहीं I'm very specific, मैंने इसी में जाना है. मतलब मैं वो ट्रांसपेरेंसी रख लेती हूँ, ठीक है, with the kind, और वो रखनी भी चाहिए, ठीक है. Why keep them in hanging के पता नहीं है कि क्या आउटकम है. तो और रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? I think अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस रेड फ्लैग होता है. Do you know people who come out as they're faking their confidence or they're मतलब I mean I'm open to diversity. अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो उसको there's nothing wrong with it, लेकिन they should be reasonable and they're saying with the reason, right? वो
सेंस बन रही हो बात की, ठीक है। बिला वजह को ओवर कॉन्फिडेंस का क्या करना है. ठीक है. तो I wouldn't drop the candidate because they're overconfident. ठीक I mean, है. I generally like people who are humble, but I wouldn't mind somebody who is overconfident. और वो red flag नहीं होता मेरे लिए. अच्छा. But they should make sense. ठीक है. So everything should match. हाँ हाँ. ठीक है. तो वो उतना नहीं है. I think long term plans में honesty बहुत ज़रूरी है. लॉन्ग टर्म, और ये बड़ा टिपिकल सा सवाल होता है राइट, कि आपने पढ़ाई के प्लान्स हैं कि नहीं, बाहर का जाना है. और वो जाहिर है मैं तो अपने कंपनी के स्टैंड पॉइंट से बता रही हूँ ना, और कैंडिडेट अपने हिसाब से बता रहा है. उसने कंपनी में आना और मैंने उसको लॉन्ग टर्म के तौर पे सोचना है कि ये 2 साल स्टिक अराउंड करेगा. और जो कैंडिडेट है उसको तो पता है कि एक टिपिकल सवाल है, तो मैं ऐसा जवाब दूँ कि मैं आ भी जाऊँ और मैं ये भी ना बताऊँ कि मैंने 6 महीने बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है. ठीक है. तो वो एक win-win. I don't know how we I should think even change if you're, that I think trend. even if somebody is मतलब being devious over there, I think it won't play out nicely for them in the long run, क्योंकि आपने It फिर won't. दुनिया बहुत छोटी है. Yeah. हो सकता है आपने फिर कभी हाँ हाँ या absolutely. आयशा किसी और कंपनी में HR चली जाए. Yeah, And then absolutely. you apply there, तो वो वहाँ पे वो I think line doesn't work. I mean either way. वो एक fear जो है ना, I guess other companies reject such people because of it. लेकिन वो जो एक fear है कि अगर मैंने ये honestly बता दिया तो मेरा तो application गई. Honestly बता दो कि मैं pursue करना चाहता हूँ, तो हम उसको मिलके कर लेंगे कंक्लूड के, फिर आई कैन बी ओपन अबाउट इट कि लोग हमने ये चीज़ हमें इतने साल के लिए चाहिए. वो दोनों के लिए विन विन हो जाएगी. मे बी वी एंड अप हायरिंग द पर्सन फॉर अ रोल जिसमें इतनी ज़्यादा टाइमलाइन की एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है. या इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो जहाँ पे भी मास्टर्स करने जा रहा है वहाँ वो पैरेलल काम भी कर सके. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ही कैन कम बैक एंड जॉइन अस आफ्टर ही इज डन विद हिज स्टडीज, क्योंकि हमारा 6 महीने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा गया है. लेकिन ये डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. वो हर तरह से इट जस्ट गोज डाउन. सही है. ठीक है. हाँ, all very good points. अच्छा, taking a different direction now. How have you seen tech as a career for women in Pakistan? मतलब I think you've hired a lot of women as well. You yourself one, I have seen you कि you've had your domestic responsibilities as well. You're managing them. और काफ़ी ज़्यादा लोग भी करते हैं. You will also probably find people who want to discuss their personal issues, their responsibilities with you. Yeah. So in light of all of that, how is tech a career for women? I know this is a very passionate question for you as well. हाँ. तो मतलब what do you think about it? I mean, I wish आपने mention किया ना कि you hired a lot of women. I wish I had hired hundreds of them. ठीक है. But it's unfortunate कि हम अभी भी उस दौर में हैं जिसमें पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ आपने पढ़ाई का लेना है. एंड फॉर वट एवर रीज़न एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां CS वाली डायरेक्शन में नहीं चूज़ करती हैं अपनी फील्ड. तो पहले तो मैं कहती थी कि शायद हम हायर भी इतना करें, लेकिन एक्चुअली इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पूरा बैच भी होता है यूनिवर्सिटी के अंदर भी, वो भी रेशो जो है वो लड़कियों की इतनी थोड़ी सी होती है. तो उसमें से कितनी नौकरी करती हैं, तो कितना परसेंटेज तो वैसे ही रह जाता है जो नौकरी नहीं करती. कितने सारे एनरोल ही नहीं करते यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के अंदर, तो हायर करना तो दूर की बात. तो बहुत ही पीछे जाके लड़कियों का नंबर बढ़ने की ज़रूरत है, तब जाके हमारे कंपनी के अंदर नंबर बढ़ेगा. तो इवन दो हमने कोई एक्सेप्शनल रास्ता नहीं निकाला हुआ, लेकिन कम से कम आई कीप एन आई कि अच्छा कोई अगर फॉर एग्जांपल हमने अगर जॉब सैंपल वाली एक्सरसाइज के अंदर 5 प्रॉब्लम्स रखी होती हैं और लड़के 11 बजे करके जा रहे होते हैं, तो अगर लड़की 3 प्रॉब्लम करके जल्दी भी चली गई तो आई वुड फोकस ऑन द 3 प्रॉब्लम्स दैट शी सॉल्व्ड. वी वुड वांट टू सी के वो उसका टाइम कंस्ट्रेंट और वो जाना, ऑब्वियसली शी कैन स्टे दैट लॉन्ग. तो वी वुड गो फॉर अ लिटिल डिफरेंट वे आउट ऑफ द वे कि यार के maybe she would end up doing well. So not a brilliant experience as far as hiring a number of girl engineers are concerned, software engineers coding के अंदर, but QA में हमारे पास लड़कियाँ अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा नंबर है, and they've done really well. लड़कियों की loyalty बहुत अच्छी होती है, their seriousness and their sense of ownership is a lot more. अच्छा. They're very focused, and the programmers that we have, माशाल्लाह, वो तकरीबन all of them are leads और potential leads. तो उससे अंदाज़ा लगाया ना कि इतने थोड़े नंबर के बावजूद the ones that we have are all leads or potential leads as compared to the bigger chunk of boys that we have. उसमें से कोई lead बनता है, तो उनके अंदर वो एक sense of leadership भी कह लो natural हो जाती है. ठीक है. So I wish girls would take more stand. They would go for a deeper research on what program to choose when they enter in their bachelors.
I wish that when they hear their parents say कि ये तो तुम्हें डॉक्टर या फलाना बनना है, आर्टिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, I wish if they have a knack of coding they would pursue that passion without any fear कि मैं ultimately किस जर्नी में जाऊंगी. ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़, आई थिंक ग्लोबली प्रॉब्लम है ये. ठीक है. डू यू थिंक के फ्लेक्सिबल आवर्स हो गए, आपके पास इवन वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी इजीली है अवेलेबल. आई थिंक के बहुत ज़्यादा रोल्स है जिनमें तो बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग है और डॉक्टर वाले रोल्स भी हैं, जो भी करियर्स होते हैं उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं होता. हाँ, एब्सोल्युटली. हमारे लाइन ऑफ वर्क में पहले तो कोई करता था, अब तो नॉर्मल है. ठीक है. सो इन लाइट ऑफ दैट हाउ डू यू थिंक इट ख़वातीन के लिए कितना ज़बरदस्त करियर है? मतलब आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल एवरीबडी कि अगर आप एक स्टे एट होम मॉम भी हैं तो यू कैन आफ्टर पुटिंग योर चिल्ड्रन टू स्लीप यू कैन एक्चुअली वर्क 3 to 4 hours कोड एंड देन पुश द कोड ओवरनाइट ताकि अगले दिन वो यूज़ है. तो आई थिंक उसको जितना स्ट्रेस करना, आई विश वी कैन डू अ separate 1 hour session on just for girls who code, yeah, girls who would want to pursue career in software engineering. Yes, मेरी अपनी आने की वजह यही थी. Like I mentioned, flexible hours ना होते, मैं यहाँ ना होती. वो जो कंटेंट मुझे मिला था अबाउट द जेडी जो एक उस वक्त मुझे अभी भी याद है, उसमें मैंने और कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था. I didn't even care about the title honestly. I had no interest in the अंदर का काम करना, क्योंकि मुझे पता नहीं कर लेना है. वो मुझे टेंशन नहीं थी अंदर के काम की. मुझे था कि कैन आई मैनेज इट विद माई सन. पहला बच्चा और 4 months. सो वो ऑलरेडी आप एक चेंज से गुजर रहे हो. शादी मेरी हार्डली साल भी नहीं हुआ होगा, साल तो जाहिर हो गया हुआ था. तो उसके बाद आपको ये नौकरी भी करनी पड़ी जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको आपको अलिफ बे नहीं पता. एंड देन फ्लेक्सिबल टाइमिंग वाज ऑल टुगेदर न्यू. आई वर्क इन अ वेरी स्टैंडर्ड 9 to 5 जॉब जिसमें आपने टाइम स्टैम्प करना होता है. तो एंड देन बिल्डिंग अ डिपार्टमेंट फ्रॉम स्क्रैच, सारा कुछ इन प्लेस करना. तो वो उस अंदर वो मैंने कैसे अकॉम्प्लिश करना उसकी मुझे आई वाज़न्ट दैट स्ट्रेस्ड. व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट के विल आई गेट दैट फ्लेक्सिबल टाइमिंग, हाउ विल आई मैनेज दैट. और वो बड़ी रोलर कोस्टर जर्नी रही है. आई मीन इसमें नो डाउट कि इसमें यासिर की सपोर्ट वाज अनबिलीवेबली अ लॉट. कभी मैंने टाइमिंग 9 to 3 करती थी. सुबह 10 से 3 आती थी दफ्तर. एंड देन आई वुड गो बैक होम एंड देन आई वुड वर्क फ्रॉम होम. ये मैंने स्टार्ट इस तरह से किया. तो उस टाइम पे मैंने टाइमिंग ऐसी रखी हुई थी कि व्हेन माय सन इज अस्लीप देन आई वुड वर्क. तो साथ में बाउंसर होना और साथ में मैं काम करती. इनिशियली आई डिडंट इवन हैव अ हेल्पर, क्योंकि आप पहला बच्चा होता है तो यू आर जस्ट वेरी प्रोटेक्टिव कि आई डोंट वांट एनीबॉडी हेल्पिंग, आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ. माई इन-लॉज वर वेरी सपोर्टिव. तो ये रूटीन थी. फिर एज ही ग्रू ज़ाहिर उसको सोने का टाइम इतना सीन ख़त्म हो गया तो ही वुड वांट टू प्ले. तो फिर मैंने टाइमिंग चेंज करनी शुरू की. फिर मैं 12 से 5 करती थी. फिर सुबह का टाइम मैंने वर्क फ्रॉम होम करना. और फिर ये वो वाला टाइम है जब ये कोविड वाला सीन नहीं था. तब वर्क फ्रॉम होम वाज़न्ट दैट कॉमन. बिल्कुल. तो आई नो, आई एम श्योर पीपल वुड हैव थॉट कि आयशा के साथ स्पेशल केस क्यों बन रहा है. लेकिन व्हाट आई हैड इन ऑल ऑफ दिस, आई होप आई मेड श्योर कि मेरा काम हर्ज नहीं हुआ. अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो वो असली वर्क फ्रॉम होम होता था. एट टाइम्स आई वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच बेटर एट होम. फोकस्ड होता था काम, दिमाग वाला काम ज़्यादा घर पे होता था. या मैं फिर इस तरह से मैनेज कर लेती थी कि जो मीटिंग्स वाले काम है वो मैं ऑफिस में कर लूँ. जो मैं जैसे मुझे आइसोलेशन में काम करना है वो मैं घर में कर लूँ. या आई वुड डू इट लेट एट नाइट आफ्टर एवरीबडी इज स्लीप. तो जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी उसी तरह की शायद ज़्यादा होगी. आई थिंक योर रोल वाज मोर डायरेक्टली लिंक्ड टू पीपल. ठीक है, आपने लोगों से मीटिंग्स करनी है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तो शायद वो भी बहुत कम होगी. दे वुड प्रॉब्ली नीड a couple of hours of overlap और बाकी सारा अपने ऑन पे करें. बिल्कुल. तो I think this needs to be stressed a lot कि ख़वातीन के लिए बेहतरीन करियर आई वुड से कि ये है given our social dynamics and everything. बिल्कुल. तो अब तो खैर कोविड वाला सीन है. अब तो खैर जिम्मेदार, I mean it sounds like it's going to be easier when you're full time working from home, but from mom it's not. I mean अब ऑनलाइन आपने अपने बेटे को, वो बेटा जो है वो फर्स्ट ग्रेड में है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. तो सुबह उसकी क्लासेस के साथ सेटल करना है. फिर आपकी फिर आपका दफ्तर का टाइम है. फिर आपकी छोटी है, आई हैव अ माई सेकंड बॉर्न इज 11 months old. अच्छा. तो वो भी एक नया चेंज है. आई मीन एक का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है. वो स्कूल गोइंग है, वो बिल्कुल बेबी है, तो उसकी डिफरेंट नीड्स हैं. तो गेट्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग. बट अगेन कभी भी मुझे ये टेंशन नहीं हुई फ्रॉम आर्बिसॉफ्ट कि
आई नीड टू मीट अ सर्टन डेडलाइन, या वो खुद ब खुद ही, क्योंकि जब आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट या इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली हो तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप खुद ही आ जाती है. एंड आई विश एवरीबडी फील्स दैट वे कि, और वो एटलीस्ट दैट हैज़ वर्कड इन माई केस. जितनी एम्पावरमेंट मिली, जितनी ऑटोनॉमी मिली, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, जितना ट्रस्ट मिला, मेरे अंदर और जिम्मेदारी फील हुई कि that is an ideal world कितना ट्रस्ट करती है. in an ideal career या in an ideal job मेरे से यही सेटअप होना चाहिए. That's good. Which brings me to my next point कि मतलब I see you running a whole department, I see you running a couple of products, I have come to you for multitasking advice myself as well. You are a full-time mom as well. तो ये सारा कुछ, इतना सारा कुछ कैसे होता है, और what are your tips for people who want to do multitasking 8 things in their life at once? I think underlying what has got me doing all of this was the fact that I love work. ठीक है, मुझे काम करना पसंद है. जब आपको एक चीज़ इतनी पसंद हो तो फिर आप you kind of manage it in a one way or the other. वो आपको फिट इन कर ही लेते हो उसको रूटीन के अंदर. आपको काम नहीं पसंद, आपको अपनी जॉब नहीं पसंद, तो फिर आप बहाने ढूंढ के कोई ना कोई रास्ता निकाल के वो, और मैं अभी भी कर सकती हूँ, मेरा काम करने का दिल ना कर रहा हो, आई विल कम अप विद अ वे. ओ मुझे ये बेटी तंग कर रही है, ओ बेटे को स्कूल में पढ़ाना है, ओ आई एम टायर्ड, ओ आई एम स्ट्रेस्ड आउट. आप नहीं करेंगे अपना काम. बट अगेन वही वाली बात कि आपके ऊपर जब पता है कि कंपनी इज़ रिलाइंग ऑन यू अ लॉट, दे ट्रस्ट यू अ लॉट, दे हैव गिवन यू सो मच एम्पावरमेंट, तो वो जिम्मेदारी अंदर तक मेरे गई हुई है बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो वो दिन बहुत कम आए हैं कि जब मैंने ये कोई ना कोई रास्ता निकाला हो टू गेट आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई कैन नॉट थिंक ऑफ मच कि मेरे पास वो वाला टाइम आया हो. कैसे होता, आई थिंक देयर वर डेज जब मैं ओवरवेल्म हो गई भी थी. जिस तरह मैंने अपने बेटे की दफ़ा आई डिड नॉट हैव अ हेल्पर. सेकंड की दफ़ा मैं दिमाग आउट हो गया हुआ था बिकॉज उसको ऑनलाइन पढ़ाना है. वो इन्होंने सारा स्कूल वाला सीन ऑफ हो गया हुआ था, तो आई कुड नॉट मैनेज वर्क एंड द लिटिल गर्ल, क्योंकि वो अटेंशन सीकर है. बेटा मेरा फिर अपने ओन पे मैनेज हो जाता था. माई डॉटर लाइक्स अटेंशन, वो लैपटॉप का काम ख़राब कर देती है. तो आई थिंक दैट्स राइट डिसीजन जो उस टाइम पे लिया, क्योंकि वो हो ये रहा था कि मेरा काम मैनेज नहीं हो रहा था. आई वुडंट बी एबल टू कंडक्ट माई मीटिंग्स, और या पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, फोकस्ड काम नहीं हो रहा था. तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो गया फॉर अ फ्यू वीक्स सून आफ्टर माई मैटर्निटी लीव्स, कि काम नहीं हो रहा, डेडलाइन पाइल अप हो रही हैं, या मैंने एक चीज़ अकॉम्प्लिश करनी है, डेडलाइन भी नहीं, खुद से दिमाग में डेडलाइन बनाई होती है कि वो नहीं हो रहा, और मैं स्ट्रेस आउट हो ही जा रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, उधर से वो तंग कर रही है. तो वो फिर we had, thankfully I have a helper full time for my daughter. वो is a blessing. If it wasn't for her तो मैं अभी भी overwhelming हो रही होती. तो उससे मेरी बेटी का मसला सॉल्व हो गया. बेटे की एक मज़े की रूटीन खुद से स्ट्रक्चर टाइप कर ली हुई है कि इतने से इतने बजे वो ये करता है, फिर वो खेलता है, फिर उसका टाइम कुछ इन लॉज दादा वगैरह के साथ एंजॉय कर लेता है. तो उसका भी एक कोविड वाले हालात में एक स्ट्रक्चर बन गया है, और मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया. बच्चों को भी समझ आ गई कि मामा इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, देन यू डोंट डिस्टर्ब हर व्हेन शी इज़ एट अ मीटिंग. उनको भी मीटिंग्स की समझ आ गई है, उनको भी समझ आ गया है कि कैसे हैंडल करना है. एंड देर हैप्पी दैट शी, एज लॉन्ग एज शी इज़ होम, तो वो फिर अगर खेल भी रहे होते तो मुझे एतराज़ नहीं होता. ठीक है. बट आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इज कि अब मीटिंग्स के अंदर अगर पीछे मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है तो आई कीप इट ओपन के कोई बात नहीं, अपने ऐसा ही है. तो सबके अच्छी चीज़ ये है कि कोविड में सबके साथ यही हो रहा है, राइट. हर एक के पीछे से शोर शराबा हो रहा है. तो उसने भी मुझे खुद ही कंफर्टेबल कर दिया कि आई एम नो लॉन्गर कॉन्शियस कि पीछे शोर हो रहा है या नहीं. अगर कोई बीच में बात करने आ रहा है बेटा, तो आई वुड जस्ट आस्क द पर्सन टू इफ यू कैन जस्ट टॉक टू द पर्सन, टू माई किड राइट नाउ. तो वो चीज़ वही वाली बात है. मैंने इसको बिल्कुल मैंने वर्क को अपनी लाइफ का पार्ट बना दिया है. ठीक है. वो वर्क लाइफ ब्लेंड जिसको कहते हैं. ब्लेंड कहते हैं, हाँ. राइट. तो आई डोंट बैलेंस. हाँ. So I don't do work life balance. I don't draw a line. You do blend. हाँ. I blend. And there is no way possible I can draw that line. मैंने try भी की थी, लेकिन didn't work? It didn't work. अच्छा. Because मेरी personality हो सकती है ऐसी. My husband is the opposite. When he comes home, he doesn't have his वो phone पे अपनी emails ही check करते हैं, और मेरे लिए this hard to believe. It's a blessing to be that person. Right. है ना? How can somebody sleep in peace? ये मेरे लिए impossible है. मैं अगर 7 बजे भी होंगे तो मेरा फ़ोन सबसे पहले होगा और मैं नोटिफिकेशन देख के मुझे तसल्ली होती है
कि कोई ऐसी टेंशन वाली बात तो नहीं है, सुकून है। मेरे लिए वो स्ट्रेस है कि मैं ईमेल अपना दिन का स्टार्ट हो, मेरे पास 25 ईमेल्स आई हों, दैट स्ट्रेसेस मी आउट। आई वुड वांट माय इनबॉक्स टू बी एम्प्टी। ठीक है, चाहे मैंने पूरा दिन में चेक करती रही हूँ, कोई ना कोई बात हो रही। चल कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किचन में मैंने स्लैक कॉल ली है, बेटे को खाना बना रही हूँ तो पीछे से स्लैक कॉल चल रही है, उठा रही हूँ। आई हैव काइंड ऑफ मेड इट पार्ट ऑफ माई लाइफ। अच्छा, इट्स नॉट disassociated with my routine now. It's part of my life. ठीक है, and how does that work out with people who have expectations of you? कोई भी they don't even find out. अच्छा, they don't know. अच्छा, unless के कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें आपको ने वीडियो वगैरह ऑन करनी है या you need a certain setup, they don't know. ठीक है, a number of times मेरा बेटा पीछे से बोल रहा है मामा फलानी चीज़ चाहिए, तो ब्लेसिंग है ये वायरलेस हेडफोन्स के, वो लगाया, पॉकेट में रखा, फ़ोन निकल गई और उसको जो भी चीज़ दी है दे के फारिग किया। किसी को भी नहीं पता चला अब तक कि मैं पीछे से क्या क्या कर रही होती हूँ। सही है। I mean that has worked in my and it is impossible कि मैं इसको disassociate कर सकूँ। It's interesting and unique advice वैसे। हाँ, interesting मतलब of all the articles that you read in magazines या Harvard Business Review में पढ़ते हैं तो I haven't found it there। तो if it's working out for you तो it is। हाँ, I mean it is, मेरे लिए तो impossible है कि मैं उसको कोशिश भी की थी। हार्ड लाइन ड्रॉ करना, हार्ड लाइन ही ड्रॉ होती है। ठीक है, सही है, पर्सनालिटी का हिस्सा है क्या? सही है। आयशा, कमिंग टू द एंडिंग पार्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, टू थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस। एक ये कि हाउ डू यू, दिस इज समथिंग दैट आई आस्क एवरीबडी हु कम्स हियर, हाउ डू यू सी द अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान फॉर पीपल कमिंग इन टेक? मतलब in 5 sentences or less, how, whatever you like, what do you think about the opportunity in Pakistan? लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट ये है वो है, उसको मतलब एक तरफ से ये है। आई आस्क एवरीबडी टू टेल एवरीबडी ओवर देयर कि अपॉर्चुनिटी कितनी है। आई मीन इट्स एनॉर्मस, राइट? वही वाली बात हम तो कह रहे हैं, हमारे पास सारा, सिर्फ बैच हायरिंग तो दूर की बात, हम सारा साल पाइथन जावास्क्रिप्ट के लोग हायर अभी भी 15 अभी भी चाहिए, राइट? 15 पाइथन के चाहिए, 15 रिएक्ट के चाहिए। अभी पिछले दिनों रिएक्ट नेटिव का भूत सवार हुआ था हम लोगों को, इतने सारे रिएक्ट नेटिव के लोग चाहिए थे। ये पॉइंट आ गया कि चलो PHP के रख लो जो कि पाइथन में शिफ्ट हो जाए, वो रख लेते हैं। फिर हमने एक जॉब ओपन की हुई है जिसमें कोई लैंग्वेज की लिमिटेशन नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, .NET, PHP, व्हाटएवर। एंड हम अल्टीमेटली आपको ट्रेन करके डाल जरूर पाइथन में ही रहे होंगे। वो ओपन की हुई है। क्या तरीके नहीं हमने ट्राई किए टू गेट एज मेनी पीपल ऑन बोर्ड? वी आर स्टिल, अभी भी हम 1000 क्यों नहीं है? बिकॉज वी डोंट गेट क्वालिटी पीपल एंड दैट्स सो अनफॉर्चुनेट, राइट? द कंपनी companies are begging for resources. Yes, we're begging for resources. I wish it comes to a point someday कि Arbisoft opens its own university. हम अपने बच्चे तो ट्रेन कर रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। I heard Netso has done something similar, but I think वो point जिस हज़ारों के हिसाब से हमें नंबर चाहिए, unless we become a full-time product company जिसमें हमें इतने लोगों का मसला ना हो, लेकिन the number of people we need वो मीट होती भी लगनी, वो एक कभी भी नहीं मीट होता। आई थिंक इन द लास्ट 5 years आई हैवंट सीन कि कभी भी जीरो जॉब्स हो ना, कभी भी नहीं हुआ। एटलीस्ट आई हैवंट आइदर, मतलब हमेशा से हम, it's just never ending, right? And it's a little challenging for me to keep my team motivated too, क्योंकि बाकी कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट इतना टफ काम नहीं है, बाकी इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे। एक रिक्विजिशन ओपन होती है, वो एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरती है, फिर वो पोजीशन क्लोज हो जाती है, फिर रिक्रूटमेंट वाले चिल कर सकते हैं। यहाँ पे there is no end, it's like a monotonous task, it's फिर एक और चाहिए, अब एक और चाहिए, अब एक और चाहिए। तो पाइथन और रिएक्ट और डेवऑप्स या QA, इसकी नीड कभी ख़त्म ही नहीं होनी। तो वो चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा। और अफसोस ये होता है कि जब हम स्टूडेंट से बात भी करते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, वो कहते भी हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है। कई दफ़ा बच्चों को, स्मार्ट किड्स नो इट ऑलरेडी, कि हमें तो फलानी टेक्नोलॉजीज में अभी तक काम करवा रहे हैं, हमारे अभी तक प्रोजेक्ट्स पाइथन में नहीं है या पाइथन की लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो इफ़ दे नो इट, तो अब तो इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो उसको परसू कर लें। यूडेमी कर लें, व्हाई डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी नाउ? हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से, आपकी जैसी भी डिग्री है ये, अगर आपने नैनो डिग्री की होगी तो हम आपको और प्रोमिनेंटली देखेंगे। यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, यू हैव डन अ नैनो डिग्री। यूडासिटी से की है, यूडेमी है, फ्री कोड कैंप से कर लें, कहीं से भी कर लें। तो वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, इनिशिएटिव बताता है। डिडंट, अगर कोई XYZ यूनिवर्सिटी जो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है और उसने अगर साथ में कोर्सेज किए होंगे ना, वो बहुत
fit किस्म का I know, stand out right? करता है कि the kid knew कि he or she was unfortunate to land in a university that isn't too good with CS, but that person was smart enough to continuously learn and is aware कि अब आजकल की टेक्नोलॉजीज क्या हैं और वो ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहा है या सीख रही है। तो वो स्टैंड आउट करते हैं। आई मीन दिस इज अनदर वन ऑफ द थिंग्स कि आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो। यू कैन स्टैंड आउट दैट वे फॉर श्योर। आप चाहे एक इंटर्नशिप करें लेकिन आप ये 3-4 कोर्सेज कर लें तो यू कैन। इंटर्नशिप भी ना की उसने नैनो डिग्री की होगी ना तो शायद तब भी हम उसको जरा की नजर से देखेंगे। ठीक है आयशा, रियली नाइस हैविंग यू हियर। एनी क्लोजिंग कमेंट्स दैट यू वांट टू say to everybody over here? People who are listening to you right now would be university students, metric, FSC, OA levels के and early age professionals. Anything that you want to say to everybody? I think मेरी पेट लाइन होती है अक्सर कि मैं जब कभी किसी की ग्रीवेंसेस होती हैं या कोई अपनी कंपनी से या टीम से खुश नहीं होता तो आई कीप सेइंग दैट एंड आई से द सेम थिंग। ये मेरे पे भी अप्लाई होता है। आई फॉलो दैट वेरी स्ट्रांगली। और वो यही है कि हम जो है ना अपना 80% ऑफ योर हमारा जो टाइम है प्रोडक्टिव टाइम या एक्टिव टाइम वो वी स्पेंड ऑन वर्क एंड वर्क रिलेटेड राइट। हमारा जो एक्टिव दिमाग वाला टाइम तो इट बेटर बी वर्थ इट। इफ इट्स अ प्लेस यू आर नॉट हैप्पी, इफ इट्स अ प्लेस जिसमें आप मजबूरी से जा रहे हैं और अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं या करती हैं कि जब उठते हैं तो दिल नहीं करता कि मैं नौकरी का ये काम करूं या मैं ये मीटिंग अटेंड करूं, फिर दिस शुड बी इट शुड स्ट्रक वन कि मेरा अब ये तब्दीली का टाइम आ गया, मुझे ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आपका इतना ज़्यादा टाइम एक्टिव टाइम इस ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे आपका दिल नहीं है तो let's just change that. At least start thinking of changing that place. I mean, I say that to people even though कि मैं HR की हो के कह रही होती हूँ उन लोगों को जो अपनी टीम में खुश नहीं होते हैं, हालांकि मैं अंदर से कह रही हूँ कि खुदा के लिए ना जाओ कंपनी छोड़ के। लेकिन अगर एक बंदा या बंदी अपने काम से खुश नहीं है, अपनी टीम से खुश नहीं है, अपने रोल से खुश नहीं है, तो फिर इट्स बेटर दैट दे मूव। वो करो जिससे खुश हो। Because it better be worth it basically. Otherwise it's not worth it. आपका टाइम। ठीक है आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह until next time. Done. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.